Hi everyone, welcome to the True Healers. So today I'll be dealing with the monohybrid and dihybrid cross, and after watching this video you'll never use the Punnett square. And so let's start with the video. Okay, देखो आपको पता ही होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोले तो आप क्या करेंगे, होमोजाइगस टॉल को, ठीक है, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस करेंगे एंड इन F1 जनरेशन यू विल गेट द हेट्रोजाइगस टॉल. ओके, इन हेट्रोजाइगस टॉल आप क्या करेंगे, सेल्फ करेंगे, ठीक है. इन F1 जनरेशन व्हाट यू विल डू, यू विल सेल्फ द हेट्रोजाइगस टॉल एंड आफ्टर सेल्फिंग दम, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग हियर, सेल्फिंग. ओके, सेल्फिंग. तो आफ्टर सेल्फिंग you will get 4 progenies. Okay, and that is F2 generation. Okay, these 4 progenies, right? Among that, see, this homozygous tall is one type, only one among 4, right? So homozygous tall is one among 4. This homozygous tall is one type among 4 progenies, right? You can write 1 among 4, whereas heterozygous tall can be written as 2 among 4. Okay, heterozygous tall are 2 among 4, and this is 1 among 4, which is homozygous dwarf. Will be always homozygous, so dwarf is 1 among 4, right? Please remember this ratio, because based on this we'll do the dihybrid cross in the easy method. Okay, see, after writing this F2 generation you will be having the questions like what is phenotypic ratio, what is genotypic ratio. See, phenotypic means physically appearing type. Okay, means, see, this is also tall. Okay, if anybody doesn't know, I'll tell that if there is dominant trait, then tall, take the trait as tall. Okay, if that is dominant, tall is dominant, right? So tall can be written like this also and write this also, means it is dominant. Okay, if recessive trait is there, then always it should be in the small letter. Okay, this is recessive and this is dwarf. Okay, recessive. Dominant, tall can be written in 2 ways, and dwarf can be written in only one way, that is small, and that is recessive. Okay, now phenotypic ratio. See, this is also tall now, as I have said, and this is also tall now. There are 3 talls, right? There are 3 talls among 4. 3 tall, and this is only 1 dwarf, right? You can write 3:1, means physically appearing this is tall and this is dwarf, so 3:1. Okay, now genotypic ratio means these are the genes in that tall plant. Because of this gene only it is appearing tall and it is appearing dwarf, so that genotypic ratio should be written here. See, this is one type this is one genotype, this is one genotype, and this is one genotype, right? This genotype is only 1 here among 4, this is 2, and 1 here, so 1:2:1 is the genotypic ratio. Phenotypic is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. Now I'll be dealing with the dihybrid cross. Okay, please do remember this part at least. Okay, based on this we'll deal the dihybrid cross very easily. Okay, now let's start with the dihybrid cross. Okay, dihybrid cross में see क्या होता है ना, आप क्या लेंगे, राउंड येलो लेंगे, ठीक है, एंड राउंड रिंकल्ड ग्रीन लेंगे, ठीक है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन लेंगे. आप इन दोनों को क्रॉस करेंगे. देखो बेसिकली क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोले तो एक सिंगल ट्रेट लेंगे. सी, वी हैड टेकन द टॉल वन, राइट? टॉल एंड dwarf one, right? Means there will be a single character you will be taking. Okay, tall one in the monohybrid cross, whereas in the dihybrid cross you will be taking 2 characters. What are those 2 characters? One, the shape of the seed, round or wrinkled, and another one, color of the seed. Okay, yellow or green. Okay, understood? So you are taking 2 characters, and in that there will be having 4 traits. What are those 4 traits? राउंड येलो एक ले लिए,
एंड रिंकल्ड ग्रीन एक ले लिया, राइट राइट। आप क्या कर रहे हो, यहाँ ना 4 ट्रेट्स है, दिस राउंड एंड रिंकल्ड इज character and yellow green is also a character, whereas in that single yellow लिए तो it is straight. I hope you will be knowing that. Okay, so आप क्या कर रहे हो, इसको इसके साथ क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तब आपको जो मिलेगा ना रिजल्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे ना, हम राउंड येलो है, रिंकल्ड येलो है, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन है, इनका जीनोटाइप्स लिखना सीखेंगे, क्योंकि जीनोटाइप्स ही लिखना नहीं आता है लोगों को, तो नेक्स्ट डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ के भी क्या कर लेंगे, है ना। तो पहले जीनोटाइप्स पढ़ेंगे कैसे लिखना है। राउंड येलो है, ठीक है, राउंड इज़ अ डोमिनेंट वन, आई हैड सेड यू। देन डोमिनेंट है तो क्या कर लेंगे आप, ऐसे भी लिख सकते हो एंड ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। राउंड बोले तो लिख लो। येलो इज ऑल्सो डोमिनेंट, आप क्या कर लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड, राइट। नाउ राउंड कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, आई सेड लाइक दिस ऑल्सो, आई सेड, ठीक है, लिख लो। बस उल्टा कर ली मैं, क्या कर ली, उल्टा कर ली, ठीक है। आसान से बोलो, राउंड राउंड को आप ऐसे लिख सकते हो ना, लिख लो, ऐसे लिख सकते हो ना, लिख लो, हो गया। अब येलो का ना ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, येलो को। एंड यहाँ क्या करोगे, फिर से लिखोगे, ओके, हो गया। राइटिंग द जीनोटाइप इज इजी नाउ, ठीक है। the only 4 will come, and just I wrote twice to make you understand, okay। now round is डोमिनेंट वन, सो व्हाट यू विल डू, राउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ग्रीन इज अ रिसेसिव वन, सो रिसेसिव को कैसे लिखेंगे आप, ओनली लाइक दिस, स्मॉल वन, ओके। रिंकल्ड ग्रीन, सी दिस इज ऑल्सो रिसेसिव एंड दिस इज ऑल्सो रिसेसिव, राइट। सो आप क्या करेंगे, रिसेसिव, दिस इज ऑल्सो रिसेसिव। रिंकल्ड ग्रीन हो गया। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो को क्या करेंगे, रिंकल्ड बोले तो ओनली लाइक दिस, बट येलो इज डोमिनेंट वन, राइट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड रिंकल को ऐसे लिख लो, बट येलो को आप ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्टूड। द राइटिंग जीनोटाइप इज ईजी, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल स्टार्ट विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड सी डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, राउंड येलो को ले लिए एंड रिंकल्ड ग्रीन को ले लिए, आप इनको क्रॉस कर लिए, एंड इन द F1 जनरेशन यू आर गेटिंग राउंड येलो itself, but it is heterozygous, double heterozygous, okay। this is double homozygous round yellow and this is recessive wrinkled green, okay। आप क्या किए, इन F1 जनरेशन इस राउंड येलो को सेल्फ किए विद द राउंड येलो, अंडरस्टूड। व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट सेल्फिंग इन द F1 जनरेशन। आपको F2 जनरेशन में क्या हो गया, ठीक है, यू आर गेटिंग 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेनिस, आई सेड यू, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, ओके। राउंड येलो, राउंड wrinkled yellow and round green and wrinkled green, okay। now what you should learn is, see, ऐसे तो आपको लिखना मैं सिखा दी कैसे लिखना है, मतलब जीनोटाइप्स कैसे लिखना है, आपको ये भी पता होना चाहिए ना, ये कितने रहेंगे, ये कितने रहेंगे, ये कितने रहेंगे, राइट। तो व्हाट विल डू इज विल लर्न द ट्रिक टू राइट डाउन द हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड लाइक दिस टाइप, okay। see what I'll do is, now in monohybrid cross I had said you that homozygous जो dominant वाला रहता है ना, it will be 1 among 4, I had said you, see, let me show once, see, 1 among 4, heterozygous is 2 among 4, homozygous dwarf is 1 among 4, see, we are applying same thing here। राउंड येलो में जो ये है ना, इट इज़ 1 among 4 इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस टाइप ऑल्सो इज़ 1 among 4, जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 1 among 16, मीन्स जिस टाइप ऑफ जीनोटाइप जो है ना, इट इज़ 1 among the 16 प्रोजेनिस ऑफ द F2 जनरेशन, 1 among the 16 प्रोजेनिस ऑफ द F2 जनरेशन, अंडरस्टूड। नाउ सी,
this one, this is 2 among 4. See, 2 among 4 in the monohybrid cross. So what you will do is 2 by 4. आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ दिस इज 1 among 4 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मल्टीप्लाई कर लो. व्हाट, 2 among 16 means this type of genotype is 2 among 16 progenies. Okay, now this is 1 among 4 and this is 2 among 4 in monohybrid cross, multiply कर लो, you'll get 2 among 16. Understood? See, I'm telling you, in monohybrid cross it is 1 among 4, this is 2 among 4, this is 1 among 4. Like this type, ये है तो यार ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ना. Okay, this one is similar to this one. I'm just comparing. Okay, see, this is 1 among 4, this is 2 among 4, this is 1 among 4. मैं क्या कर ली, this is 1 among 4, right? 1 among 4 लिखी and this is also 1 among 4, multiply कर ली, 1 among 16 हो गया. This is 2 among 4, right, in monohybrid cross. So 2 among 4 into 1 among 4, so we'll get 2 among 16. What you are doing here, same like that only. This is 2 among 4, this is also 2 among 4. What you are getting, 4 among 16. Okay, now round green, this is 1 among 4 in monohybrid cross, this is also 1 among 4. अब क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 1 among 16 हो गया. दिस इज सी, दिस इज 2 among 4 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो 2 among 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 among 4 कर लेंगे. व्हाट यू विल गेट, 2 among 16. ओके, नाउ रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन 1 among 4 into 1 among 4. What you will get, 1 among 16. Understood? Now this one, wrinkled yellow, wrinkled yellow. So this is 1 among 4, this is also 1 among 4. What you will do, 1 among 4 multiply by 1 among 4. What you will get, 1 among 16. This is 1 among 4, 2 among 4. 1 among 4, this is 2 among 4. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, you will write 2 among 16. Okay, okay, see, now you got to know, right? अगर ऐसे पूछ ले ना कोई भी, मतलब ये दे दिए और कितने थे डायहाइब्रिड क्रॉस में, या आपको एप्लीकेशन बेस्ड दे देंगे, ठीक है, आप इस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो. आई सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपको वो भी इजी लग जाएगा, ठीक है. सी, now what we'll do is we'll write down the phenotypic and genotypic ratio. Okay, phenotypic ratio and genotypic ratio. See, very easy. Phenotypic ratio means I had said you that जो फिजिकली हमें दिखता है ना, दैट इज phenotypic ratio, राइट. सो आप क्या करेंगे, देखो, दिस इज राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, दिस इज ऑल्सो. आप ऐड करो, कितना हो गया, 9 हो गया. 4 + 2 + 2 + 1 9, ठीक है. राउंड ग्रीन कितने हैं, 1 + 2 कितने, 3, राइट. एंड सी, दिस इज 9, दिस इज 3. ओके, दिस इज 2 and 1, तो 3 हो गया. एंड दिस इज ओनली 1. ओके, सो राउंड येलो वॉज 9, राउंड ग्रीन इज 3 एंड रिंकल्ड येलो इज 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन इज 1. सो आप फिनोटाइपिक रेशियो क्या लिख सकते हो, 9:3:3:1. वेयर एज जीनोटाइपिक रेशियो, सी जीनोटाइपिक रेशियो बोले तो नथिंग बट दिस वन ओनली, 1:2:2:1:2:2:1 1:2 and 1. देखो, इतना लंबा ना हमें याद करना नहीं होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दिस. सो व्हाट यू विल डू इज विल टेक द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड राइट डाउन द जीनोटाइपिक रेशियो. सी, लाइक दिस यू कैन डू. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, राइट. मल्टीप्लाई कर लो फिर से, बिकॉज इट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, राइट. सो आप मल्टीप्लाई कर लो, 1:1, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 1 1. Okay, now 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 1 2, again 1 say 1:2:1. That is the genotypic ratio. Okay,
Easy? Okay. Now I will solve some of the questions based on this trick. So आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रिक को यूज़ करना है. Okay. Now questions. Okay. See, on crossing two heterozygous tall plants, a total of 500 plants were obtained. See, how many plants were obtained? 500 plants, right? अब just mark कर लो इनको. 500 plants, right? 500 plants were obtained in F2 generation. Means totally how many progenies were obtained? 500 in F2 generation. What will be the respective number of tall and dwarf plant, right? क्या पूछ रहे? टॉल एंड ड्वार्फ. आपको ये नहीं पूछ रहे कि वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस टॉल है, बस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन. ठीक है. देयर वेर 500 प्लांट्स. ठीक है. क्या कर रहे हैं लोग? 500 प्लांट्स है. 500 प्लांट्स में कितने टॉल थे, कितने ड्वार्फ थे, बस उतना पूछ रहे. आप क्या करेंगे ना, देखो आपको पता है, देखो यहाँ तो वो लोग बस बोल रहे टॉल, मतलब दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या था? 3:1. 3:1 रेशियो में रहता है. आप क्या कर सकते हो, 3:1 रेशियो का जो है ना, आप देख सकते हो. ठीक है. ये भी 3:1 का रेशियो है, दिस इज ऑल्सो 3:1 रेशियो. तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो आप इसको जो है ना 500 आप लिख लो. 500 टॉल को कैसे फाइंड करेंगे? कितने थे टॉल? 3. तो 3/4 मल्टीप्लाई कर लो. कितना हो गया? 1 सा 2 सा 5 सा 125. 3 सा 375. ये कितना हो गया? टॉल का हो गया. ओके. नाउ ड्वार्फ का कितना था? 1/4. सो 500 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लो. आई गेट 125. सो दिस इज ड्वार्फ. वही तो पूछ रहे वो लोग, राइट? 3:1 रेशियो में 371:125 आ जाएगा आंसर. अंडरस्टूड. टॉल वेर 3/4 वेर एज ड्वार्फ वॉज 1/4. सो मल्टीप्लाई कर लो 500 के साथ. 3/4 इंटू 500 टॉल आ जाएगा. 1/4 इंटू 500 आ जाएगा ड्वार्फ. समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, अ टोबैको प्लांट heterozygous for a recessive character is self-pollinated and 1200 seeds were subsequently generated. See, जो बोल रहे हैं ना ये लोग 1200 seeds, it is जो 1200 यहाँ है ना, it is generated in the F2 generation. Okay, 1200 seeds were subsequently generated. How many seedlings would have been the parental type? See how nice the question is. Parental type. देखो यहाँ ना हेट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर. देखो रिसेसिव टॉल ऐसे आ गया ना, ओनली वन कैरेक्टर इज देयर, देन इट इज नथिंग बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. नाउ पूछ रहे कि पैरेंटल टाइप कितने थे. पैरेंटल में ना, पैरेंटल ये भी था एंड ये भी था. ठीक है. दिस आर द पेरेंट्स इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. आपको याद है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो दिस आर द पेरेंट्स इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. आप क्या करेंगे? देखो दिस जो टी था ना, इट इज़ 1/4 एंड दिस टी था ना, दैट इज ऑल्सो 1/4 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट? तो आप क्या करेंगे? इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई कर लो. ये किसके लिए? टी पेरेंट को फाइंड करने के लिए. सो 1200 वर जर्मिनेटेड इन F2 जनरेशन. आप कितने थे? वो 1/4 थे, तो मल्टीप्लाई कर लिए. तो व्हाट यू विल गेट? 300. टी 300 थे, whereas this टी that also you should find out, right? So क्या हो जाएगा? 1200 into 1/4, तो 300 ही आ जाएगा. ओके, दिस वॉज ऑल्सो 300 एंड दिस इज ऑल्सो 300. सो आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 600. ठीक है. 600 पैरेंटल जीनोटाइप का सीड्स वेर फॉर्म्ड इन द F2 जनरेशन. दैट वॉज द क्वेश्चन. अंडरस्टूड? आपको वो लोग पूछ रहे हैं पैरेंटल जीनोटाइप. सो पैरेंटल वॉज कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट एंड जो ड्वार्फ था वो, तो दैट इज 1/4. दिस इज ऑल्सो 1/4. मल्टीप्लाई कर लो बस 1200 से, और ये 300 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, ऐड कर लो 600 आ जाएगा.
Understood? Okay. Now next question. A tall plant with a round seeded, okay, is crossed with the wrinkle seeded. See wrinkle seeds मतलब यहाँ ना ऐसे आ गया ना, डबल आ गया, तो इट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, वहाँ क्या पूछ रहे, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड. क्या पूछ रहे, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड, मतलब दोनों क्या है, रिसेसिव है, ड्वार्फ एंड रिंकल. तो आप क्या कर लेंगे, दोनों रिसेसिव है, मतलब आपको पता ही है ना, दोनों रिसेसिव है तो 1/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई कर लेंगे. ड्वार्फ का 1/4, रिंकल्ड का भी 1/4 मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट यू विल गेट 1/16 आ गया. वो पूछ रहे वो लोग, तो 1/16 इज द आंसर. अंडरस्टूड. ड्वार्फ एंड रिंकल्ड बोथ आर रिसेसिव कैरेक्टर. सो रिसेसिव कैरेक्टर का जो रेशियो है ना 1/4 है, मल्टीप्लाई कर लो 1/16 आ गया, एंड दैट इज द आंसर. नेक्स्ट, a pure breeding pea plant with round yellow seed was crossed with a pea plant having wrinkled green seeds. On selfing F1 generation hybrid, 64 progenies. See, this question is very nice. 64 progenies were obtained in the F2 generation. I was telling you, right? जो हम वैसे था ना पिछले क्वेश्चंस में, ऐसे यहाँ 64 है. ठीक है, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस बिकॉज राउंड येलो है. ठीक है, मतलब दो ट्रेड्स ले रहे हैं ना वो लोग, दैट इज क्रॉस्ड विद द रिंकल्ड ग्रीन. सो दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो F2 जनरेशन में क्या हो गया, 64 प्रोजेनिस वर फॉर्म्ड. ओके, फाइंड आउट द प्रोजेनी शोइंग द नॉन पैरेंटल कैरेक्टर्स. ठीक है, देखो आपको ना मैं जो रेशियोज लिखवाई थी ना, वो रेशियोज में ओके, रेशियोज में क्या हो जाएगा, आपको राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, दिस वर द पेरेंट्स, एंड दिस इज 9 इन द रेशियो एंड दिस इज 1 इन द रेशियो. मतलब 10 कितने थे, वो पैरेंटल टाइप थे. तो जो बच्चे हुए हैं ना, मतलब जो 6 अमंग 16 थे ना, दे वर नॉन पैरेंटल टाइप. तो आप क्या कर लेंगे, 64 को आप 6 टोटली 16 वेर प्रोजेनी, 16 में 10 तो पैरेंटल का हो गया, जो बच्चा हुआ दैट इज 6. सो 6 अमंग 16 आर द नॉन पैरेंटल टाइप. सी दिस इज पैरेंटल 1 बिकॉज राउंड येलो इज 9 एंड रिंकल्ड ग्रीन इज 1, एंड जो टोटली हो जाएगा 16, तो 16 में 10 इज द पैरेंटल 1 whereas 6/16 इज द नॉन पैरेंटल 1. सो आप क्या कर लेंगे, जिस 64 को आप 6 अमंग 16 से मल्टीप्लाई कर लो. समझ रहे हो? सो 16 4 सा, तो 6 4 सा 24. सो दिस इज द आंसर. दिस वाज द प्रीवियस ईयर CET क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट, this one, last one. Okay, in dihybrid cross, okay, F2 progenies, this one was formed. Okay, क्या है, this one, this one, this one, this one was formed. So आपको पूछ रहे ये कितने रेशियोज में आए थे, आपको वो इजी हो जाएगा. देखो आपको ये पता है ना कैसे फाइंड करना. दिस इज 1/4 है, दिस इज ऑल्सो 1/4 बिकॉज दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, तो 1/16 हो जाएगा. ओके, दिस वन, दिस इज 1 अमंग 4 एंड दिस इज 2 अमंग 4, तो कितना हो जाएगा 2/16, एंड दिस इज 2/16 एंड दिस वन इज 2/4 एंड 1/4, तो क्या हो जाएगा 2/16 हो जाएगा. ओके, नाउ दिस वन, दिस इज 2 अमंग 4 एंड दिस इज 2 अमंग 4, तो कितना हो जाएगा 4 अमंग 16. राइट, मतलब 1:2:2:4 जो आंसर है ना, दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? थैंक यू. If you did like this video, then please let me know, and if you need more videos like this, then do comment below. Thanks a lot.